हालेलुया। गुड मॉर्निंग, खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, मैं पादी सलमान यूसुफ हर रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन की इस निशिस्त को। और मकसद क्या है? ताकि जो बीइंग अ बिलीवर अटर्निटी की तरफ हमारा सफ़र जारी है, उस सफ़र में हम अपने कैप्टन को हर रोज़ गुड मॉर्निंग कहते रहें और अपने कैप्टन की रहनुमाई में चलते रहें। और हमारा कैप्टन कौन है? बेशक खुदा सालूस यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स। और जब हम इस एटर्निटी के इस सफ़र में हर रोज़ आगे एक कदम बढ़ते चले जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं, तो अगर हमारा कैप्टन हमारे साथ है, अगर उसकी रहनुमाई में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर यकीनन अपनी राह से भटक जाने का एहतमाल जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आज इसी सोच के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में इस नई सुबह में फिर से हाजिर, ताकि आप लोगों को भी और अपने लिए भी ये यकीन दहानी और याद दहानी करवाता रहूं कि हमारा कैप्टन जो है वो हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे आगे आगे चलता है, ताकि हम अपनी मंजिल से भटक ना जाएं। चुनांचे दोस्तों, आइए डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हम्द करते हैं। और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तू हम पर रहम फरमा और हमारी सुबह की इस रियाजत को खुदावंद तो अपने हुजूर मकबूल ठहरा। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत गीत और बड़ा वेल नोन गीत जो कलीसियाओं में बहुत अरसे से गाया जाता है और हम सबको आता भी है। खुदावन अपने लोगों में आया है, पाखरू का पहरा हर चूज छाया है, वो आया है, यीशु आया है। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी हमद करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया।
the Lord. خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے لیے جو ابھی ہم نے کوائر کے ساتھ مل کر گایا، اور یقیناً اس گیت کے وسیلے سے آپ لوگوں نے ضرور برکت پائی ہے۔ خداوند آپ لوگوں کو خاص اپنی شفقت و سلامتی میں یوں ہی قائم و دائم رکھے، اور وقت ہے کہ ہم خداوند کے بزرگ کلام کی تلاوت کو سنیں، اور آج کی مقرر کردہ تلاوت ہم اپنی بیٹی تمر الفیض کے وسیلے سے سنیں گے۔ اور آئیے خداوند کے پاک کلام۔ شکریہ پاس صاحب، آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے مقدس کلام میں سے زبور 19 اور اس کی 14ویں آیت۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرا فدیہ دینے والے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنن پر خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ قادر مطلق آسمانی باپ، اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو آراستہ کر، سیر کر، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام اقدس پر غور کریں اور خداوند تیرے نام کو مبارک کہیں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پرفضل کلام کے حصے کے لیے جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، اور جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام پر غور کرنے کو ہیں تو اس تناظر میں ایک انگلش پوئٹ جس کا نام رابرٹ براؤننگ ہے، اس کا ایک جملہ، اس کی ایک سینگ مجھے یاد آتی ہے۔ اور رابرٹ براؤننگ نے کہا، ہمارے ہر ایک عمل کی روح جو ہے وہ ہماری سوچ ہے، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہماری سوچ کار فرما ہوتی ہے، اور یہ ہماری سوچ ہی ہے جو در حقیقت ہمارے کسی بھی عمل کو، ہمارے کسی ایکٹ کو، ہمارے کسی کام کو اچھا یا برا بنا رہی ہوتی ہے۔ اگر ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ ہے تو ایکٹ بھی پازیٹیو ہے، اگر ذہن میں منفی خیال اور منفی سوچ ہے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی منفی ہی ہوں گے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کی روح سے اس بات کو دیکھیں تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ماضی میں خدا نے پانی کے سیلاب کے وسیلے سے انسانیت کو فنا کر ڈالا۔ ریزن کیا تھی؟ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ اور محرکات یہی تھے کہ بنی نوع انسان کا گناہ جب اس قدر بڑھ گیا کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، تو کیا خدا نے کیا کہ تمام انسانیت کو سوائے چند جانوں کے، یعنی نوح اور اس کے خاندان کے، تمام بنی نوع انسان کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا، فنا کر ڈالا۔ تو غور طلب چیز کیا ہے کہ اگر خدا ماضی میں گناہ سے اس قدر کراہیت کرتا تھا کہ اس نے تمام تر انسانیت کو ہی ہلاک کر ڈالا، تو کیا آج وہ گناہ کو برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کبھی بھی گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی نگاہ، خدا کے کلام کے وساطت سے کیا ہے کہ اس کی نگاہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر روز گناہ کا خواب دیکھتے ہیں، گناہ کو امیجن کرتے ہیں، گناہ کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، اور پھر گناہ کرنے کے لیے نت نئے منصوبے گھڑتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا جو کہ منصف اور عادل خدا بھی ہے، جس نے اگر ماضی میں گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تو زمانہ حال اور مستقبل میں وہ کیسے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کو اپرچونٹی مل جائے، موقع مل جائے، تو پھر وہ گناہ کرنے سے چوکتے بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے ہر ایک عمل کے پیچھے ہماری سوچ جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور اگر ہمارے ذہن میں اچھی سوچ ہے تو ہم اچھا کام کریں گے، اگر بری سوچ ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم برا ہی کام کریں گے۔ چنانچہ آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو گناہ میں مبتلا ہے، خداوند کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو گناہ کو گھڑنے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مصروف عمل رہتا ہے، یقیناً خدا کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے وہ ناراست ہے، اور خدا ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ گو کہ خدا بار بار ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور خدا ان کی طرف لوٹ آئیں،
लेकिन शायद उन बेशुमार और बहुत सारे लोगों में से जो हर वक्त गुनाह करने के दर पर रहते हैं, शायद चंद लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी की हकीकत को पहचान पाते हैं, जो नदामत का इजहार करते हैं अपनी बुरी रविशों पर। लेकिन दुनिया की बड़ी तादाद जो है वो गुनाह को करने में और गुनाह को अमली एतबार से अमली जामा पहनाने में मसरूफ अमल रहती है। तो मेरे दोस्तों, आज हमें क्या करना है? हम बहुत सारी दुआएं खुदा उनके हजूर करते हैं, हर रोज हम खुदा के हजूर हाजिर होते हैं, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और अपनी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट खुदा उनके सामने रखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने खुदा उनके सामने ये रिक्वेस्ट भी रखी कि खुदावंद तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, ज़बूर नवीस की तरह? क्या कभी हमने खुदावंद से कहा क्या खुदावंद तू हमारी जिंदगी को नया बना, तू हमारी जिंदगी को रोशन कर, तू हमें असर नौ मुस्तकीम रूह दे, तू हमारी जिंदगियों में एक पाक और नया दिल पैदा कर दे, ताकि हम गुनाह की तरफ जो है वो कभी मायल ना हो। हम ज़बूर नवीस की तरह ये बात खुदावंद के हुजूर बरमला इकरार करते हुए और दिलेरी के साथ क्या कभी हम कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं? और मेरे दोस्तों, शायद ये रिक्वेस्ट, शायद ये मिन्नत और समाजत हम बहुत कम खुदावंद के हुजूर में रखते हैं। चुनाचे आज करना हमने क्या है कि याद रखिए कि हमने अपने आप को गुनाह से आजाद रखना है, अपने आप को गुनाह से अलग करना है। क्योंकि याद रखिए कि इब्लीस इस कदर शातिर है कि वो हमारे जहन की स्क्रीन पर ऐसे बहुत सारे गुनाहों को फ्लैश करता जाता है कि जब हम उस स्क्रीन पर उन गुनाहों को बार बार आते हुए देखते हैं तो गुनाह के अंदर एक ऐसी अजीब कशिश और लज्जत है कि इंसान वही काम करने की तरफ माइल होता चला जाता है। मसलन जो कुछ हम परसीव करते हैं, जो कुछ इब्लीस हमारे जहन की स्क्रीन पर फ्लैश करता है, वो हमें ये दिखाता है, हमें ये बताता है कि भाई अगर झूठ बोलोगे तो बहुत सारे मामलात में मुश्किल में फंसने से बच जाओगे। वो हमें कभी कभी इस तरफ भी ले जाता है कि भाई दूसरे के पास इतना माल है, तेरे पास कम है, तो छीन ले इससे या चुरा ले इसका माल। कभी कभी वो हमें बददयानती की तरफ माइल कर देता है, या इसके साथ साथ कभी वो हमें शहवत परस्ती की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह और लातादाद ऐसे गुनाह हैं कि जिनको वो हमारे जहन में नक्श करता है, और जब वो गुनाह की सोच जो है वो हमारे जहन में जो गुनाह नक्श हुए होते हैं, जो तस्वीर बनी होती है, जब हम उसको परसीव कर लेते हैं अपने जहन में, जब उसकी सोच हमारे ख्यालों में आती है, तो फिर हम क्या करते हैं? हकीकत में हम अपने उस ख्याल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म हो जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। और मेरे दोस्तों, आज हमें करना क्या है? हकीकत में हमें अपने आप को गुनाह से अलग करना है, क्योंकि कब तक हम खुदा को आजमाते रहेंगे? माजी में अगर खुदा ने इतने बड़े तूफानी माहौल में इंसान को हलाक कर डाला, तो आज हम खुदा को ना आजमाएं, आज खुदा के कहर को आवाज ना दें और गुनाह से तौबा करें, सच्चे दिल से खुदावंद के सामने झुकें और उससे कहें कि खुदावंद तू मेरे ख्यालात और मेरे मुंह के अल्फाज और मेरे तमाम अमाल का जिम्मा ले और मुझे गुनाह से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें हर तरह के गुनाह से पाक करने में सच्चा और आदिल है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को आज हमने समझना है, और अपने दिन का आगाज जब हम करने को हैं तो अपने दिन का आगाज इस बात से, इस सोच के साथ करें कि आज हम हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में कोई गलती, कोताही और गुनाह सरजद ना हो। और इसी तरह से याद रखिए कि अपनी जिंदगियों का एहतसाब कीजिए कि कहीं हमारी ख्वाबगाह, कहीं हमारा लिविंग रूम जो है वो गुनाह के कचरे से भरता तो नहीं जा रहा, कहीं हमारा जहन जो है वो गुनाह की अमाजगा तो नहीं बन गया।
और अगर ऐसा है तो अभी और इसी वक्त तौबा कीजिए, यीशु पर ईमान लाइए। लेकिन अगर हम ये महसूस करते हैं कि मेरी ज़िंदगी गुनाह से मुबर्रा और दूर है और मेरे ज़िंदगी में गुनाह करने का इस्तेमाल यीशु के लहू के वसीले से बहुत कम है, तो यकीनन ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आज मेरे भाई मेरी बहन, हमने खुदावंद से ये अहद करना है कि खुदावंद हम तुझसे ये अहद बांधते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू से हम हर रोज अपने आप को पाक करते जाएंगे और इब्लीस के किसी भी हथकंडे में हम शामिल नहीं होंगे, उसके बिछाए हुए जाल में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि तेरा रूल कुद्स हमें तहरीक देने के लिए काफी है। और कलाम के हिस्से के वसीले से खुदा आप लोगों को बरकत दे, आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदा हम इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर जारी रहे और खुदा हम तेरी कुदरत हमें आगे पीछे से घेरे रहे, ताकि हम गुनाह की तरफ माइल ना हों, बल्कि हमेशा की जिंदगी के उस सफर को जारी रखते हुए खुदा हम तुझे अपनी जिंदगी का साहिबान और कैप्टन तस्लीम करते हुए तेरे नक्शे पा पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ते जाएं, खुदा हम यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा की हम्द हो। और दोस्तों, यकीनन मुझे इजाज़त दीजिए और कल आपकी खिदमत में फिर एक नई आयत लेकर हाजिर हूँगा, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा आप लोगों को सेहतमंद और तवाना रखे। जाने से कबल ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई डिवोशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मेरे दोस्तों, अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा हम तक पहुंचाते रहें। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे, आमीन।